السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے روزہ دنیا میں کب رکھا گیا؟ پہلا رمضان کا روزہ کس نے رکھا؟ روزے کی شروعات کب سے ہوئی؟ سب سے پہلا روزہ دنیا میں کب رکھا گیا اور کس نے رکھا؟ یہ جاننا ہر مسلمان عورتوں اور مردوں کے لیے ضروری ہے۔ پیارے دوستو، رمضان ایک ایسا پاک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ بتایا گیا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزوں کو کب فرض کیا گیا اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوا کرتے تھے؟ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم اسی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس امت پر کس طرح سے روزے فرض ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ پیارے دوستو، رمضان میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزدار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسط رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا ہے، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزہ رکھتے تھے اور یہ روزہ مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخری میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھے، لیکن کئی روایت یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلام کا سر حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلام کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے روزے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء
और फिर इमाम उल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसा कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया है, इसी तरह हर उम्मत पर रोजों को भी फर्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोजे हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोजों की तादाद और ये कब किस वक्त किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीजों में आज से फर्क था। रमजान अल मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शवाल उल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया कि माह रमजान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी जिंदगी में पाए, उसे इस बरकती महीने में रोजे रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है, इस सफर की हालत में है और उसके रोजे छूट जाते हैं, तो वह बाद में उन रोजों को पूरा कर सकता है। प्यार दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज में आसानी दी है। इसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोजे रखने चाहिए और अगर कभी कोई रोजा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। प्यार दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूद और नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरा का रोजा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को उम्मत रोजों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थी। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी और इसी दिन समंदर से रास्ते निकालकर हमारे रब ने हमें दरियाए नील से पार कराया था। चुनाचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोजा रखते हैं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं, लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोजा रखा करो। यहूदी 1 रोजा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोजे हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोजा रखा करते थे, लेकिन जब रमजान मुबारक के रोजों को फर्ज किया गया तब इन रोजों को सुन्नत रोजा का दर्जा दे दिया गया। प्यारे दोस्तों, रमजान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाता है और फिर ये दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोजेदार की मग़फ़िरत फरमा देता है। प्यार दोस्तों, रोजा रखने के फायदे क्या हैं, क्या आप जानते हैं? ये तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोजा रखें, लेकिन इसके फायदे कितने हैं आप इसको सोच भी नहीं सकते। और आज के जमाने में जब साइंस की तालीम बहुत आगे है और वह नई नई चीजों पर रिसर्च कर रही है, तो इन साइंसदानों ने रोजों के हवाले से भी रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फायदे बताए। तो आज हम साइंस के एतबार से तकरीबन 7 फायदे आपको बताएंगे कि रोजा रखने के फायदे क्या हो सकते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का यह मानना है कि रोजा रखने से दिल और दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजा दिल और दिमाग को सेहतमंद बना देता है, ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, जो शख्स रोजे में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर न ज्यादा होता है न कम होता है, बल्कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही तो वजह है कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, लेकिन रमजान मुबारक के महीने में वह रोजा रखते हैं तो अल्लाह के फजल और करम से उनको कोई तकलीफ नहीं होती। नंबर 3, जो रोजेदार होता है वो ग़िज़ा कम इस्तेमाल करता है, जिसमें बदन की चर्बी पिघलती है। यूँ हम साल भर हमारे बहुत सारे साथी वर्जिश करते हैं और अलग अलग जगहों पर पैसे देकर वर्जिश करते हैं, जिम जाते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले, सैर करते हैं, दौड़ते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन रमजान मुबारक में जब हम रोजे से होते हैं तो खुद ब खुद ही चर्बी पिघलने लगती है और इंसान के जिस्म में जो बिना जरूरत मोटापा आ गया है वह धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, रोजा रखने वाले के पट्टों में मजबूती होती है, यानी उसके पट्टों में ताकत पैदा हो जाती है और किसी
भी एतबार से इसका पट्टा कमजोर नहीं होता बल्कि मजबूत हो जाया करता है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे प्यासे रहेंगे तो कैसे सेहतमंद हो जाएंगे। रोजा रख कर देखिए कि जिस्म के अंदर कितने बदलाव आ जाते हैं। ऐसे बदलाव के जिन बदलाव के लिए हम साल भर पैसा खर्च करते हैं, फिर भी सही तरीके से वो बदलाव हमारे जिस्म में नहीं आ पाता। पांचवा फायदा इसका यह है कि निजामे हाशमी को आराम मिलता है और सीधा सीधा उसका असर जिगर और दिल पर दिखाई देता है। और जब दिल ठीक होता है तो इंसान के जिस्म के बहुत सारे हिस्से ठीक होते हैं। नंबर 6, रोजेदार के लिए यानी जो रोजा रखता है उसके फेफड़े बराह रास्त खून को साफ करता है। और जब रोजेदार रोजे से होता है तब हमारा यह फेफड़ा खून को साफ करता है और उसमें खून जम जाता है। तो जब हम रोजा रखते हैं तो खून की सप्लाई बहुत कम होती है और जब खून की सप्लाई कम होती है तो फिर फेफड़ों में जो खून जमा रहता है वो धीरे धीरे पिघलता है। तो इस तरह वो जमा हुआ खून बिल्कुल साफ कर देता है, यानी रोजा रखने की वजह से हमारा फेफड़ा साफ हो जाता है। नंबर 7, खून में गिजाई मादे कम हो जाते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो खून में गिजाई मादे कम हो जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर जो गुदा पैदा हो जाता है तो वो गुदा खुद ब खुदा हरकत में आ जाता है। तो इंसान के जिस्म को ताकत मिलती है, इंसान के जिस्म को कुव्वत मिलती है और इंसान की हड्डियों को मजबूती मिलती है। इस तरह जब इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं तो उसका पूरा जिस्म मजबूत हो जाया करता है। इसके अलावा साइंसदानों ने बहुत सारे फायदे बताए हैं। तकरीबन हमने 7 फायदे आपको बता दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने और रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुराइयों से दूर रखे और हमारे सभी गुनाहों को माफ फरमाए और अल्लाह पाक हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।